ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਸ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 4 ਜੁਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਸਡ ਹੋਏਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ PPSC PSCB ਕਲਰਕ, ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, PCS SSC CGL CHSL ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ, SSC ਦੇ ਜਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, WhatsApp ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈ 1 ਜੁਲਾਈ। 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟਲ ਵਰਕਰਸ ਡੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟਲ ਵਰਕਰਸ ਡੇ ਕਦੋਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ CA ਡੇ ਵੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਐਂਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਐਂਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਐਂਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੈਲਵਨਾਈਜ਼ਡ ਰੇਬਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਾ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਟੂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੁਆਰਾ 2021 ਦਾ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਐਪੈਕ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਓਕਲੈਂਡ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਡਿਊ ਟੂ COVID-19। ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਪੈਕ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਪੈਕ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 1989 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਪੈਕ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰੈਬੇਕਾ ਫਾਤਿਮਾ ਸਤਾ ਮਾਰੀਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਸਾਈਨਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ? ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਫॉर द ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ 50-50 ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਕੰਪਨੀ ਫॉर LPG ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ LPG ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 50-50% ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਏਗਾ ਦੋਨੋਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ? ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੇਰਲਾ ਦੁਆਰਾ ਡ੍ਰੀਮ ਕੇਰਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡ੍ਰੀਮ ਕੇਰਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਰੈਸੀਡੈਂਟਸ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਫਰਮ ਐਬਰੋਡ ਐਂਡ ਫॉर ਦ ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪਰਸਨਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡ੍ਰੀਮ ਕੇਰਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। IIT ਮਦਰਾਸ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਪਹਿਲੀ ਐਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਵਰਲਡ ਦੀ ਫਸਟ ਔਨਲਾਈਨ BSc ਡਿਗਰੀ, ਜਿਸਨੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਔਨਲਾਈਨ BSc ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਐਂਡ ਡਾਟਾ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ HRD ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨਿਸ਼ਾਂਕ ਦੁਆਰਾ। HRD ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨਿਸ਼ਾਂਕ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। IIT ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਨੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬੇਸਡ ਇੱਕ ਟੂਲ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਸਟ ਐਕਸਰੇ ਤੋਂ COVID-19 ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੈਸਟ ਐਕਸਰੇ ਦੁਆਰਾ COVID-19 ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟੂਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ IIT ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਨੇ। ਸਰਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਰਿਸਰਚ ਬੋਰਡ। ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਸਲਰੇਟ ਵਿਗਿਆਨ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਅ ਸਿੰਗਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ। ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ? ਰਿਸਰਚ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲਈ, ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਐਸਲਰੇਟ ਵਿਗਿਆਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ MSME ਮਿਨਿਸਟਰੀ। MSME ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਲਵੇ ਹੈ।
इन्हां द्वारा एक डेवलप किया गया उद्यान रजिस्ट्रेशन पोर्टल। उद्यान रजिस्ट्रेशन पोर्टल, उद्यान रजिस्ट्रेशन पोर्टल किन्हां द्वारा डेवलप किया गया? फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ MSME इंडस्ट्रीज़, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने जिहड़ियां इंडस्ट्रीज़ ने उन्हां दी रजिस्ट्रेशन के लिए उद्यान रजिस्ट्रेशन पोर्टल एक डेवलप किया गया। नितिन गडकरी रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने प्लस MSME मिनिस्टर ने नागपुर महाराष्ट्र तो लोक सभा MP ने। नैक्सट HDFC बैंक, HDFC बैंक द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई फार्मर्स के लिए। फार्मर्स के लिए ई किसान धन एप्लीकेशन, ई किसान धन एप्लीकेशन नूं HDFC बैंक द्वारा फार्मर्स के लिए लॉन्च किया गया। नैक्सट अपॉइंटमेंट डिस्कस करिए अगर आप इंदिरा मनी पांडे, इंदिरा मनी पांडे एक अपॉइंटमेंट है, एंबेसडर अपॉइंट किए गए ने और परमानेंट रिप्रजेंटेटिव कह सकते हैं इंडिया वालों। इंडिया वालों एंबेसडर और परमानेंट रिप्रजेंटेटिव कितने? यूनाइटेड नेशनस और अदर ऑर्गेनाइजेशंस कितने? जनेवा स्विट्जरलैंड के विच। इत्थे कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, एग्जाम के क्वेश्चन ट्रिकी वे दे नाल पूछा जा सकता है कि यूनाइटेड नेशनस के विच एंबेसडर कौन अपॉइंट किए गए हैं इंडिया वालों? TS त्रिमूर्ति, TS त्रिमूर्ति। यूनाइटेड नेशनस का हैडकुआटर न्यूयॉर्क दे विच है। और इस तरीके नाल यूनाइटेड नेशनस के ऑफिस दे विच जनेवा स्विट्जरलैंड दे विच इंडिया ने एंबेसडर अपॉइंट किया इंदिरा मनी पांडे नूं, इंदिरा मनी पांडे। नैक्सट श्रीकांत माधव वैद्य, श्रीकांत माधव वैद्य यह भी अपॉइंट किए गए चेयरमैन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नवे चेयरमैन अपॉइंट किए गए श्रीकांत माधव वैद्य। संजय द्विवेदी, संजय द्विवेदी नूं अपॉइंट किया गया डायरैक्टर जनरल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का डायरैक्टर जनरल संजय द्विवेदी नूं अपॉइंट किए गए। रविंदर भास्कर, रविंदर भास्कर अपॉइंट किए गए CEO सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म्स सर्टिफिकेशन के। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म्स सर्टिफिकेशन के विच CEO अपॉइंट किए गए रविंदर भास्कर। मुंबई महाराष्ट्र के विच इसका हैडकुआटर है और इसके चेयरमैन ने प्रसून जोश, प्रसून जोश। इमरान खवाजा, इमरान खवाजा चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के। ICC के चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए हैं? इमरान खवाजा, इमरान खवाजा। बेसिकली की होया कि शशांक मनोहर ICC के चेयरमैन से इन्होंने रेजिग्नेशन दिता, इन्होंने इन्हों की टर्म खत्म हो चुकी सी। उस तो बाद इन्होंने कुछ टाइम का एक्सटेंशन दिता गया सी क्योंकि ICC की मीटिंग नूं COVID-19 के कारण कैंसल किया गया सी। तो जिहड़ा एक्सटेंशन दिता गया इन्होंने उस एक्सटेंशन तो पहले ही अपना रेजिग्नेशन दे दिता है। तो उस रेजिग्नेशन तो बाद एज ए इंटैरिम चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं इमरान खवाजा। नवे चेयरमैन इलैक्शनस होणगे जो मीटिंग हैल्ड होएगी ICC की उदों अपॉइंट किए जाएंगे। मेजर नाइगिर जौहर, मेजर नाइगिर जौहर नूं अपॉइंट किए गए हैं फर्स्ट फीमेल लैफ्टिनेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान आर्मी के फर्स्ट फीमेल लैफ्टिनेंट जनरल अपॉइंट किए गए। कृतिका पांडे द्वारा कॉमनवैल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ दिता गया द इंडियन टी एंड स्नैक्स नॉवल के लिए, द इंडियन टी एंड स्नैक्स नॉवल के लिए। बेसिकली यह सैकेंड इंडियन बने ने जिन्होंने यह प्राइज़ दिता गया है। 2016 के विच प्रशार कुलकर्णी द्वारा भी इस प्राइज़ नूं जितया जा चुके। नैक्सट है आप डिस्कस कर रहे हैं बर्ड सेंचुरीज़। बर्ड सेंचुरीज़ के सब तो पहले अज डिस्कस करांगे मेघालय। मेघालय के विच है सीजू बर्ड सेंचुरी, सीजू बर्ड सेंचुरी। मिजोरम, मिजोरम के विच है दंपा टाइगर रिजर्व, दंपा टाइगर रिजर्व। सिक्किम, सिक्किम के विच है कीतम बर्ड सेंचुरी, कीतम बर्ड सेंचुरी सिक्किम के विच। तमिलनाडु पुलिकट लेक बर्ड सेंचुरी, काफ़ी इंपोर्टेंट है। पुलिकट लेक कित्थे है? तमिलनाडु के विच ते उहदे उत्ते एक बर्ड सेंचुरी सिचुएटेड है, पुलिकट लेक बर्ड सेंचुरी। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के विच नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, काफ़ी बार एग्जाम का क्वेश्चन बन चुकी है। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी। आमनगढ़ टाइगर रिजर्व काफ़ी इंपोर्टेंट और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश की तीनों चीज़ां काफ़ी इंपोर्टेंट ने क्योंकि इत्थे एक नैशनल पार्क, एक सिंगल नैशनल पार्क है दुधवा नैशनल पार्क। दुधवा नैशनल पार्क है, इसके कारण इत्थे काफ़ी जी बाकी बर्ड सेंचुरीज और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ने इंपोर्टेंट बनदियां ने। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। वेस्ट बंगाल बक्सा टाइगर रिजर्व।
बक्सा टाइगर रिजर्व। बक्सा टाइगर रिजर्व वेरी इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है वैस्ट बंगाल दे विच, और इत्थे बक्सा नैशनल पार्क भी है, याद रखना। नैक्सट आप चलते हैं अज दे फर्स्ट क्वेश्चन दे वल। अज दा फर्स्ट क्वेश्चन है विच डे इज़ ऑब्जर्वड एज वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। किहड़े दिन नूं वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे ऑब्जर्व किया गया? 2 जुलाई नूं। 2 जुलाई नूं वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे ऑब्जर्व किया गया। इस तो इलावा 1 जुलाई नूं हुणे आपां डिस्कस करके हटे हाँ, एक तो डे डिस्कस किया गया नैशनल पोस्टल वर्कर्स डे, नैशनल पोस्टल वर्कर्स डे, नैशनल CA डे, CA डे भी ऑब्जर्व किया गया 1 जुलाई नूं। एक दिन डिस्कस किया सी आपां ने नैशनल डॉक्टर्स डे, नैशनल डॉक्टर्स डे ऑब्जर्व किया गया 1 जुलाई। ठीक है जी। 30 जून, 30 जून नूं किहड़ा दिन डिस्कस किया सी आपां ने? 30 जून नूं आपां ने डे डिस्कस किया सीगा एस्टेरॉयड डे, इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे, इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे ऑब्जर्व किया गया 30 जून नूं। 29 जून की गल करिए, 29 जून नूं आपां ने स्टैटिस्टिक्स डे, नैशनल स्टैटिस्टिक्स डे ऑब्जर्व किया सी। 27 जून नूं MSME डे, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजिज डे ऑब्जर्व किया गया 27 जून नूं। 29 जून नूं नैशनल स्टैटिस्टिक्स डे, जिसके कारण एक अवार्ड भी डिस्कस किया सी आपां ने। अच्छा, उस अवार्ड दसना है अवार्ड किसनूं दिता गया? ठीक है, अवार्ड दसना है नैशनल स्टैटिस्टिक्स डे का जिहड़ा अवार्ड है वो किहड़े परसन नूं दिता गया? फॉर्मर गवर्नर रह चुके ने RBI दे। नैक्सट, हू हैज़ लॉन्च फर्स्ट एडिशन ऑफ मत्स्य संपदा न्यूज़ लैटर फिशरीज एंड एग्रीकल्चर एक्वाकल्चर रिसेंटली। बेसिकली सब तो पहले मत्स्य का फुल फॉर्म, मत्स्य का मतलब की होता है फिश। ठीक है, तो यानी कि फिश दे रिलेटेड कोई स्कीम है। एक न्यूज़ लैटर रिलीज़ किया गया, उसका पहला एडिशन फिशरीज और एक्वाकल्चर के लोगों को अवेयर करने के लिए, बेसिकली अगर आप कह सकते हैं जोड़े फिशरमैनस ने उन्होंने अवेयर करने के लिए इसनूं लॉन्च किया गया। इसनूं लॉन्च किया गया फिशरीज मिनिस्टर गिरिराज सिंह द्वारा। गिरिराज सिंह एनीमल हसबेंडरी मिनिस्टर ने, डेयरी एंड फिशरीज मिनिस्टर ने, डेयरिंग एंड फिशरिंग मिनिस्टर ने गिरिराज सिंह। ठीक है जी। अच्छा, यह लोक सभा MP ने बेगूसराय बिहार तो, बेगूसराय बिहार तो लोक सभा MP ने गिरिराज सिंह। अच्छा, सिमिलर एक मत्स्य के रिलेटेड एक स्कीम सीगी, अगर आप गल करिए स्कीम नूं लॉन्च किया गया सीगा आंध्र प्रदेश द्वारा। मत्स्य करा भरोसा एक स्कीम लॉन्च की गई सी आंध्र प्रदेश द्वारा, जिस दे अंडर 10,000 रुपये फिशरमैनस फैमिली नूं दिते गए सी। नैक्सट है RK सिंह अगर गल कर लें पावर मिनिस्टर ने, न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर ने, आरा बिहार तो लोक सभा MP ने। हरदीप सिंह पुरी सिविल एविएशन मिनिस्टर, सिविल एविएशन मिनिस्टर। इस तो इलावा हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री इन्हां लवे, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री है। राज्य सभा MP ने उत्तर प्रदेश तो, UP राज्य सभा MP ने उत्तर प्रदेश तो। मनसुख लाल मंडाविया की गल करिए, मनसुख लाल मंडाविया शिपिंग मिनिस्टर ने, शिपिंग मिनिस्टर ने। इस तो इलावा इन्हां लवे कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने, यानी कि डिप्टी कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्टर ने। और राज्य सभा MP ने गुजरात तो राज्य सभा MP ने। राव इंद्रजीत सिंह लवे प्लानिंग मिनिस्ट्री है, बेसिकली प्लानिंग मिनिस्ट्री और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन और प्लानिंग मिनिस्ट्री है, जिसनों MOSPI कहा जाता है। MOSPI मिनिस्ट्री द्वारा रिसेंटली नैशनल स्टैटिस्टिक्स डे के उत्ते अज का अपना पहला क्वेश्चन जिहड़ा कि आपां हुणे पुछया सी कि नैशनल स्टैटिस्टिक्स डे के उत्ते किसनूं अवार्ड दिता गया? MOSPI द्वारा, MOSPI मिनिस्ट्री द्वारा। राव इंद्रजीत सिंह लवे MOSPI मिनिस्ट्री है, गुरुग्राम हरियाणा तो लोक सभा MP ने। नैक्सट है विद विच कंट्री इंडिया होल्ड अ नेवल एक्सरसाइज। इंडिया ने एक नेवल एक्सरसाइज नूं हेल्ड किया पैसेक्स, पैसिंग एक्सरसाइज। पैसेक्स इस दी शॉर्ट फॉर्म दे विच इसनूं पैसेक्स कहा जाता है, जिसकी फुल फॉर्म है पासिंग एक्सरसाइज टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग इन इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन दे विच
ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈਲਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨੇਵੀ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਇੱਕ ਨੇਵੀ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈਲਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ? ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੈਨਿਊਮੈਤਰੀ, ਧਰਮ ਗਾਰਜੀਅਨ, ਸੈਨਿਊਮੈਤਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਧਰਮ ਗਾਰਜੀਅਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ? ਆਪਣੀ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅਗਰ USA ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਮਾਲਾਬਾਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਮਾਲਾਬਾਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਹੈਲਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੈਂਡ ਇਨ ਹੈਂਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਹੈਂਡ ਇਨ ਹੈਂਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਮਾਲਦੀਵਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਈਕੂਵਰੀਨ, ਈਕੂਵਰੀਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਮਾਲਦੀਵਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਮਾਲਦੀਵਸ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਲੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਮਾਲੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਾਗਰ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਾਗਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਸੇਤੂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਲੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜ ਜਾਂ 6 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ INS ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੀ INS ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਜਲਾਸ਼ਯ ਔਰ ਮਗਰ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਲਾਸ਼ਯ ਔਰ ਮਗਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਮਾਲੇ ਦੇ ਲਈ। ਮਿਆਂਮਾਰ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਬੈਕਸ, ਇੰਬੈਕਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਮਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ, ਮਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, नैक्सट क्वेश्चन अपना डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की एक मीटिंग हैल्ड की गई जिसनों हैड किया किस द्वारा इसनों हैड किया गया? जिन्हों ने अप्रूव की 38,900 करोड़ रुपए की डील, 38,900 करोड़ रुपए की डील ਨੂੰ फाइनल किया गया, अप्रूवल दी गई जिस दे अंडर नवे 21 MiG-29 जैट्स, MiG-29 जैट्स 21 नवे खरीदे जाएंगे इंडियन एयरफोर्स के लिए। 59 MiG-29 अपग्रेड किए जाएंगे और 12 Su-30 मकई, Su-30 मकई एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे 12। 38,900 करोड़ रुपए की डील ये फाइनल की गई राजनाथ सिंह द्वारा। इस जी काउंसल है डिफेंस एक्विजिशन काउंसल, इसनों हैड किया गया डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा, जिहड़े कि लखनऊ उत्तर प्रदेश तो लोक सभा MP ने। जी सतीश रेड्डी DRDO के चेयरमैन ने, DRDO के चेयरमैन ने जी सतीश रेड्डी। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट काउंसल 1 जनवरी 1958 में इसनों बनाया गया सी। करनाटका न्यू दिल्ली इसका हैडकुआटर है और जी सतीश रेड्डी इसके हैड ने। अजय कुमार इंडिया के डिफेंस सैक्रटरी ने। इंडिया के डिफेंस सैक्रटरी कौन ने? अजय कुमार। श्रीपद येसो नायक डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर ने, डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर ने श्रीपद येसो नायक। इस तो इलावा इन्होंने लवे आयुष मिनिस्ट्री है। DB शेखरतर एक कमेटी के हैड बनाए गए थे जिन्हों के बारे आप काफ़ी बार डिस्कस किया है कि वह कमेटी जिस द्वारा CDS की पोस्ट कह सकते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पोस्ट क्रिएट की गई। या अगर आप गल करिए 2704 पोस्टां एबोलिश की गई मिलटरी इंटैलीजेंस दियाँ, मिलटरी इंजीनियरिंग दियाँ बेसिकली। इस तो इलावा BRO के रिलेटेड भी इन्हों की कमेटी द्वारा ही एक डिसीजन लिता गया सीगा, DB शेखरतर कमेटी। नैक्सट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट प्लान्स टू प्लांट 13.11 करोड़ रुपए, 13.11 करोड़ सैपलिंग्स कह सकते हैं प्लांट्स। 13.11 करोड़ यानी कि 13 करोड़ 11 लाख प्लांट्स लगाने की गल की गई है ओवर एन एरिया ऑफ 1,30,624 हैक्टेयर। 1,30,624 हैक्टेयर दे विच इन्ने ज़्यादा प्लांट्स लगाने की गल की गई है। बेसिकली अगर कह सकते हैं ग्रीनरी को बढ़ावा देने के लिए इनिशिएटिव लिया गया है उड़ीसा गौरमेंट द्वारा। किहड़ी स्टेट द्वारा? उड़ीसा गौरमेंट द्वारा।
उड़ीसा काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। अगर ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਇੱਥੇ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਟੂ ਐਨੀਮਲ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੈਟਾ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ। ਉੜੀਸਾ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦੇ ਉਤਕਲਾ ਜਨਾਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਐਂਥਮ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੜੀਸਾ ਦੁਆਰਾ 3 ਮੈਗਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟਰਾਈਬਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਗਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਟਰਾਈਬਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉੜੀਸਾ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਲੀਆ ਸਕੀਮ, ਪੀਠਾ ਸਕੀਮ, ਅੰਮਾ ਘਰੇ ਸਕੀਮ, ਸੁਨੇਤਰ ਸਕੀਮ, ਸਮਰਿਧੀ ਸਕੀਮ, ਮੋ ਸਰਕਾਰ, ਮੋ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੋ ਕਲਿਆਣ, ਮੋ ਜੀਵਨ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਕੀਮਸ ਕਿੱਥੇ ਦੀਆਂ ਨੇ? ਉੜੀਸਾ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਰੋਕਾ ਚੀਕਾ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਲਈ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਓਲਡ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਓਲਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਰੂਰਲ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਸਪੰਦਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਦਰਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੁਆਰਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗਸ ਨੂੰ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। 10 ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਜੈਪੁਰ ਨੂੰ ਨੋ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਹਾਪਰਵਾਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਅਗਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਕੀਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪਲਗਰ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਭਿਆਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਗਿਵਨ ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਨੇ ਟੈਪ ਵਾਟਰ ਰੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੁਆਰਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਟਰੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵਰਲਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? 5 ਜੂਨ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਵਾਟਰ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ? ਹੁਗਲੀ ਰਿਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪਰਸਨਸ ਆਰ ਅਮੰਗ 38 ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ। ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਕਿ 38 ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ? ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਰਨੇਗਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੁਆਰਾ 2020 ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਓਨਰੀਜ਼। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ? 38 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ 2020 ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਓਨਰੀਜ਼। ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਟੁਵਾਰਡਸ ਐਫਰਟਸ ਇਨ ਮਿਟੀਗੇਟਿੰਗ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੈਲਥ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਫਰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 38 ਪਰਸਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, 38 ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? USA ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣਾ ਬੋਥ 1 and 2 यानी कि सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम ने। अगर आप गल करिए सिद्धार्थ मुखर्जी की तो सिद्धार्थ मुखर्जी ਨੂੰ ਪੁਲਜ਼ੀਕਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੁਲਜ਼ੀਕਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ। 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਲਜ਼ੀਕਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਾਜ ਚੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ। ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਰਾਜ ਚੇਟੀ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪੁਲਜ਼ੀਕਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਪਾਂ ਨੇ 3 ਨਾਮ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, 3 ਇੰਡੀਅਨ ਪਰਸਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਜ਼ੀਕਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਹਿੰਟ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਚਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਪਰਸਨਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ। ਐਵਰਟਨ ਵੀਕੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਵਰਟਨ ਵੀਕੀਜ਼ ਕਾफ़ੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਓਬਿਚਰੀ ਹੈ। ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾफ़ੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ 3 Ws ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ 3 ਪਲੇਅਰ ਸੀਗੇ ਇਹ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ 3 Ws। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀਗੇ ਐਵਰਟਨ ਵੀਕੀਜ਼। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
नेक्स्ट है हू हैज़ बीन नेम्ड फ्रॉम इंडिया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे अपने लिए। इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एज ए मैंबर्स ऑफ एन इंटरनेशनल साइंटिफिक ग्रुप एम्ड टू ऑफर foremost scientific evidence for sustainable food systems established by United Nations Chief Antonio Guterres। काफ़ी इंटरस्टिंग न्यूज़ है। सब तो पहले यूनाइटेड नेशनस के ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਨੇ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਤਾ। ਗਰੁੱਪ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ, ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਫੂਡ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲਈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲਸ ਦੀ, ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ 2030 ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ, ਫੂਡ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ फाइट करके एक गोल्स रखे गए हैं ताकि उन्होंने गोल्स ਨੂੰ हासिल किया जा सके। 2030 उसका टारगेट रखा गया। तो उन्होंने विचों एक है फूड क्राइसिस। तो फूड सिस्टम के नाल डील करने के लिए और बेसिकली एक समिट हैल्ड किया जाएगा, ग्लोबल फूड समिट। ग्लोबल फूड समिट 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ इसनों हैल्ड किया जाएगा, ग्लोबल फूड समिट। उसदे लई इंडिया वालों इंडिया के 2 परसनस नूं उस ग्रुप के शामिल किया गया, रतन लाल और डॉक्टर उमा लेले। यानी कि अपना आंसर होएगा बोथ ऑप्शन 1 एंड 2। फिफ्थ ऑप्शन रतन लाल और डॉक्टर उमा लेले। रतन लाल की गल करिए रिसेंटली न्यूज़ के सीगे, किस करके ये न्यूज़ के सीगे, रतन लाल इन्हों प्राइज़ दिता गया सी वर्ल्ड फूड प्राइज़। वर्ल्ड फूड प्राइज़ 2020 इन्हों दिता गया। ओहियो यूनिवर्सिटी के प्रोफैसर ने, ओहियो यूनिवर्सिटी के प्रोफैसर ने डॉक्टर रतन लाल। डॉक्टर उमा लेले की गल करिए, डॉक्टर उमा लेले एकनॉमिस्ट ने इंटरनेशनल एसोसीएशन ऑफ एग्रीकल्चर दे विच, इंटरनेशनल एसोसीएशन ऑफ एग्रीकल्चर दे विच एकनॉमिस्ट ने डॉक्टर उमा लेले। इन्हां दोनों नूं ऐड किया गया एज ए मैंबरस किस दे विच, एक ग्रुप दे विच जिसनूं बनाया गया यूनाइटेड नेशनस के चीफ एंटोनियो गुटरस द्वारा। यूनाइटेड नेशनस का हैडकुआटर कित्थे है, न्यूयॉर्क दे विच। यूनाइटेड नेशनस के रिलेटेड हुणे आपां एक न्यूज़ डिस्कस करके हटी सी कि इन्हां दे विच एक मैंबर ऐड किए गए हैं इंडिया वालों, मैंबर नहीं सॉरी रिप्रजेंटेटिव ऐड किए गए हैं। ठीक है। इस तो इलावा राकेश कुमार की गल करिए, राकेश कुमार रिलेटेड भी एक न्यूज़ डिस्कस कर लें। राकेश कुमार नूं एंबेसडर अपॉइंट किया गया एक कंट्री के विच, किहड़ी कंट्री के विच एंबेसडर अपॉइंट किया गया, सीरा लियोन। सीरा लियोन कंट्री के विच इन्हां नूं एंबेसडर अपॉइंट किया गया। अपने लिए इंपोर्टेंट बनेगी इसकी कैपिटल और करेंसी। कैपिटल है फ्री टाउन, कैपिटल है इसकी फ्री टाउन और करेंसी इत्थे लियोन चलती है। सीरा लियोन कंट्री के विच कैपिटल है फ्री टाउन और करेंसी लियोन चलती है। इंडियन एंबेसडर अपॉइंट किए गए हैं राकेश कुमार। नेक्स्ट है विच ऑफ द स्टेट और यूटी इज़ डिक्लेयर्ड डिस्टर्ब्ड एरिया फॉर अनदर 6 मंथ्स। बेसिकली 6 महीनों के लिए एक स्टेट या यूटी नूं डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया गया। किस नूं, नागालैंड नूं। नागालैंड स्टेट नूं अगर आप गल करिए, इत्थे एक ट्राइब है नागा ट्राइब। ये ज़्यादातर राइट्स दे विच शामिल होंदी है, दंगे होंदे रहंदे ने इत्थे। तो इत्थे दे जिहड़े गवर्नर ने और चीफ मिनिस्टर इंपोर्टेंट बन गए। चीफ मिनिस्टर ने नेफ्यू रियो, गवर्नर ने इत्थे दे RN रवि। तो गवर्नर द्वारा इत्थे की किया गया, डिक्लेयर किया गया कि जिहड़ी नागालैंड स्टेट है इसनूं 6 महीनों के लिए डिस्टर्ब्ड एरिया कहा गया, डिस्टर्ब्ड एरिया कहा गया। ठीक है जी, ये याद रखना है। त्रिपुरा द्वारा रिसेंटली एक तू खेलो एक तू पढ़ो इनिशिएटिव लॉन्च किया गया सीगा, याद रखना है। जम्मू कश्मीर के गवर्नर की गल करिए GC मुर्मू। लद्दाख के गवर्नर की गल करिए, लद्दाख के गवर्नर ने RK माथुर। जम्मू कश्मीर को एक प्राइज़ दिता गया सी, जम्मू कश्मीर नूं सशक्तिकरण पुरस्कार समथिंग इस तरीके का अवार्ड सीगा। ग्राम पंचायत इन्हां दी ग्राम पंचायत के लिए सोशल एकनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ग्राम पंचायत नूं समथिंग सशक्तिकरण पुरस्कार इस तरीके का एक अवार्ड दिता गया सी जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन, याद रखना है। नेक्स्ट है विच बैंक हैज़ लॉन्च इंस्टेंट लोन फैसिलिटी। एक फैसिलिटी लॉन्च की गई इंस्टा लोन्स अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स इन पार्टनरशिप विद कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज के नाल पार्टनरशिप करके एक बैंक ने इंस्टा लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स इस दे लई एक लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करने की गल की है। किस द्वारा लॉन्च की गई यह फैसिलिटी ICICI बैंक द्वारा।
किहड़े बैंक द्वारा की गई? ICICI बैंक द्वारा। इन्हां द्वारा ही इंस्टा लोन फैसिलिटी एक होर इंस्टा क्रेडिट फैसिलिटी बेसिकली समथिंग लॉन्च की गई सी ICICI बैंक द्वारा ही। इस तो इलावा ICICI बैंक WhatsApp के उत्ते सर्विस शुरू करने वाला बैंक बनया सीगा। कोविड-19 दौरान WhatsApp के उत्ते सर्विस शुरू कीतियां सी ICICI बैंक ने। SBI के CEO का नाम अगर गल करिए रजनीश कुमार, नाम याद रखना है। HDFC हम हार नहीं मानेंगे, हम हार नहीं मानेंगे, इस सॉन्ग के लिए प्रसून जोशी द्वारा लिरिक्स दिते गए सी और AR रहमान इसके म्यूजिक दिता गया सी। HDFC बैंक द्वारा अगर आप गल करिए समर ट्रीट्स कैंपेन लॉन्च किया गया सी। यस बैंक मुंबई के हैडक्वार्टर है, प्रशांत कुमार इसके हैड ने। इन्होंने रिसेंटली स्वस्थ कार्ड लॉन्च किया सी। स्वस्थ कार्ड दिल्ली की एक कंपनी अफोर्ड प्लान के नाल मिल के, दिल्ली की एक कंपनी अफोर्ड प्लान के नाल मिल के स्वस्थ कार्ड लॉन्च किया सी यस बैंक ने। एक्जिम बैंक ने 2 कंट्रीज़ में लोन प्रोवाइड किया, मलावी और निकारागुआ नूं। मलावी नूं लोन प्रोवाइड किया गया 215 पॉइंट समथिंग मिलियन एंड निकारागुआ नूं 20 पॉइंट समथिंग मिलियन, 20.10 मिलियन बेसिकली। नेक्स्ट है, हु हैज़ रिलीज्ड अ बुक फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। इस बुक नूं रिलीज़ किया गया किस परसन द्वारा इस बुक नूं रिलीज़ किया गया? इस बुक नूं रिलीज़ किया गया M वेंकैया नायडू। इंडिया के वाइस प्रेजिडेंट की गल करिए, इंडिया के वाइस प्रेजिडेंट ने M वेंकैया नायडू। इन्हां द्वारा इस बुक नूं रिलीज़ किया गया फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स, 9 मेगा ट्रेंड्स। इस तो इलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गल करिए, इन्हां द्वारा एक बुक रिलीज़ की गई सी। काफ़ी पुरानी न्यूज़ अगर आप डिस्कस करिए, इन्हां द्वारा एक बुक रिलीज़ की गई सी जिसका ऑथर सीगे सिद्धार्थ वरदराजन समथिंग इस तरीके का नाम से उन्हों का। उस बुक का नाम सी, चलो मेरे माइंड से स्किप कर रहा है, हजे रहन देने आ। इस तो इलावा नरेंद्र मोदी जी की जी सैकेंड टर्म है, सैकेंड टर्म के 1 साल पूरा होने पर एक बुक रिलीज़ की गई सी प्रकाश जावड़ेकर द्वारा। प्रकाश जावड़ेकर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ने मोदी 2.0 इस तरीके की एक बुक रिलीज़ की गई सी नरेंद्र मोदी जी की सैकेंड टर्म का फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने। डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा भी एक बुक रिलीज़ की गई सी कथा कोविड कथा रिलेटेड समथिंग इस तरीके की एक बुक रिलीज़ की गई सी डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा। रमेश पोखरियाल निशांक HRD मिनिस्टर ने, एजुकेशन मिनिस्टर ने रमेश पोखरियाल निशांक हरिद्वार उत्तराखंड तो लोक सभा MP ने। स्मृति ईरानी बेसिकली ये WCD मिनिस्ट्री इन्होंने लवे वूमेंस एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। इस तो इलावा टैक्सटाइल्स मिनिस्ट्री है अमेठी उत्तर प्रदेश तो लोक सभा MP जी। इन्हों द्वारा भी एक बुक रिलीज़ की गई सी, बुक का नाम सीगा क्रॉन्काइल्स ऑफ स्टेट समथिंग इस तरीके की बुक सी, क्रॉन्काइल्स ऑफ चैंपियंस। इस बुक का नाम सीगा स्मृति ईरानी द्वारा इस बुक नूं रिलीज़ किया गया सी। नेक्स्ट है, ऑन द नेम ऑफ विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। किहड़े फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के नाम के उत्ते, किहड़े फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के नाम के उत्ते एक बुक रिलीज़ की गई, बुक नहीं सॉरी एक कमैमोरेटिव स्टैंप रिलीज़ की जाएगी जिसनों फादर ऑफ इंडियन एकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहा जाता है। उस प्राइम मिनिस्टर नूं फादर ऑफ इंडियन एकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहा जाता है। किन्ना दे नाम देते? PV नरसिम्हा राव इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। इन्हों फादर ऑफ इंडियन एकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहा जाता है और इन्हों के नाम के उत्ते एक कमैमोरेटिव स्टैंप रिलीज़ की जाएगी। बेसिकली 28 जून नूं इन्हां दा बर्थ एनिवर्सरी सी इन्हां दी, इस करके इन्हां दे नाम के उत्ते एक कमैमोरेटिव स्टैंप रिलीज़ करने की गल की गई है। ठीक है जी, ये याद रखना है। जिन्ने भी ऑप्शंस ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, मनमोहन सिंह बिल्कुल रिसेंटली रहे ने। अगर आप गल करिए नरेंद्र मोदी जी तो पहले की टर्म से इन्हों की, इंदिरा गांधी 2 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और इंडिया के ओनली कह सकते हैं फर्स्ट वूमेन कह सकते हैं या ओनली वूमेन प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इंदिरा गांधी। और ऐसे प्राइम मिनिस्टर ने जोड़े राज्य सभा तो ऐड किए गए थे, राज्य सभा तो प्राइम मिनिस्टर बनने वाले प्राइम मिनिस्टर ने इंदिरा गांधी, ये भी याद रखना है। इस तो इलावा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कितने है? न्यू दिल्ली के, न्यू दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है।
ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ जी की गल करिए, इंदिरा गांधी के बेटे ने 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ हैदराबाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਰੀਜਨ ਸਮਥਿੰਗ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ फीफा द्वारा अप्रूव किया गया कोविड-19 रिलीफ फंड 1.5 बिलियन 1.5 बिलियन कह सकते हैं, 1.5 बिलियन US$ एक रिलीफ फंड कोविड-19 के लिए फीफा द्वारा अप्रूव किया गया। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है कि हु इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ फीफा के प्रेजिडेंट कौन ने? फीफा के प्रेजिडेंट ने गियानी इन्फेंटिनो। सैकेंड ऑप्शन फीफा के प्रेजिडेंट ने गियानी इन्फेंटिनो। फीफा की गल करिए, फीफा का हैडकुआटर जूरीच स्विट्जरलैंड के विच है। ਜ਼ੁਰੀਚ स्विट्जरलैंड ਦੇ ਵਿੱਚ फीफा ਦਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। 108th ਰੈਂਕ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਫੀਫਾ ਰੈਂਕਿੰਗਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 108। ਗਿਆਨੀ ਇਨਫੈਂਟੀਨੋ ਇਸ ਦੇ ਹੈਡ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟਰਸ, ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਹੈਡ ਨੇ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟਰਸ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਮ ਬ੍ਰਾਈਟਸਟੀਨ ਨਾਸਾ ਦੇ ਹੈਡ ਨੇ। ਨਾਸਾ ਦੇ ਹੈਡ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਮ ਬ੍ਰੈਡਸਟੀਨ। ਨਾਸਾ ਦਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਦੁਆਰਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ। ਮਾਰਕੋਸ ਤ੍ਰਿਓਜ਼ੋ NDB ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਸ਼ੰਘਾਈ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੈੱਡ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਮਾਰਕੋਸ ਤ੍ਰਿਓਜ਼ੋ। ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਸੀ KV ਕਮਾਥ। ਕੈਰਮਨ ਰੈਨਹਾਰਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚੀਫ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੀਫ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਨੇ ਕੈਰਮਨ ਰੈਨਹਾਰਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 189 ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਨੇ? ਡੇਵਿਡ ਮਲਪਾਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੀਫਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਫੀਫਾ ਦੇ ਕੁਝ ਈਵੈਂਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਫਾ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2022 ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਕਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2026 ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕੈਨੇਡਾ USA ਔਰ ਮੈਕਸੀਕੋ। 3 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਸਟ ਕਰਨਗੀਆਂ 2026 ਦਾ ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ। 2021 ਦਾ ਫੀਫਾ ਅੰਡਰ-20 ਮੈਨਸ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋਸਟ ਕਰੇਗਾ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ-20 ਵੂਮੈਨਸ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2021 ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਸਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ ਔਰ ਪਨਾਮਾ। 2021 ਦਾ ਫੀਫਾ ਅੰਡਰ-17 ਮੈਨਸ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋਸਟ ਕਰੇਗਾ पेरू। 2020 फीफा अंडर-17 वूमेनस वर्ल्ड कप 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। कोविड-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਮਿਲਰ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੂਮੈਨਸ ਵਰਲਡ ਕੱਪ। ਫੀਫਾ ਦਾ ਵੂਮੈਨਸ 2023 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਔਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਸੈਸ਼ਨ। ਗੁੱਡ ਬਾਏ।